Hello everyone, welcome to Tune Up with Megha Jain. And in today's session, we are going to see the 10 most important questions that comes into an AP interview. Yes, we are going to see the 10 most important questions that come in AP interview and are mostly asked by the interviewers. Okay, so let us start with the first one. I will explain you in both in Hindi and English. Okay, so let us see the first one. First वाला देखते हैं. What is accounts payable? ठीक है, accounts payable क्या है? Accounts payable is the amount a company owes to its vendors or suppliers for goods and services received but not yet paid. It is recorded as a liability in the balance sheet. मतलब ये वो पैसा होता है, ठीक है, जो कंपनी ने अगर कोई मटेरियल एंड जो सर्विसेज ली होती हैं, ठीक है, वो अभी तक उसका पैसा पे नहीं किया है एंड इसलिए ये एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड होती है बैलेंस शीट के अंदर. ठीक है, दिस इज व्हाट अकाउंट्स पेबल इज. ठीक है, लेट्स सी द सेकंड वन. एक्सप्लेन द एपी प्रोसेस स्टेप्स. सो एपी के अंदर हमारे क्या क्या स्टेप्स हैं. सो फर्स्ट इज आईआर, ठीक है, विच इज invoice received, then is invoice validation, then is matching, invoice posting, approval, payment processing और reconciliation. ठीक है, so invoice received मतलब vendor sends invoice यानी कि vendor हमें bill भेजता है. Then comes the invoice validation. Check invoice details like amount, date, vendor name, tax. ठीक है, यानी कि बिल की डिटेल्स हमें चेक करते हैं हम इसके अंदर. देन कम्स मैचिंग. कंपेयर इनवॉइसेस विद पीओ एंड जीआर. है मैचिंग करने के हमारे 2 वे मैच और 3 वे मैच. ठीक है, सो इनवॉइस को पीओ और जीआर से हम इसके अंदर कंपेयर करते हैं. Then comes your invoice posting. We will post and enter invoices in the system. Then comes the approval part. Get required approvals. इसके अंदर हमें approvals लेने होते हैं. 6 is payment processing. Again, payment vendor on due date. We will pay to the vendor, pay vendor on due date. इसके अंदर हमें vendors को on due date pay करना होता है. And then the last step is the reconciliation step. reconciliation क्या होता है? reconciliation का मतलब होता है दो रिकॉर्ड्स हैं जैसे कंपनी के और वेंडर के, उनको हमें कंपेयर करना है, देखना है और सब कुछ मैच करना है कि अगर सब मैच हो रहा है या नहीं, और अगर कोई डिफरेंस है तो हमें उसको सॉल्व या फिर एडजस्ट करना है. टू कंपेयर, मैच रिकॉर्ड balances of vendor and company and close open items. ठीक है, so these are all the steps of the AP process. invoice received invoice received, validate, match, post, approve, pay and then reconciliation. ठीक है, and then next move to the third question. What is P2P and its process workflow? P2P is purchase to pay, or we can also say for procurement to pay. Okay, ये complete cycle है from end to end business process, from purchasing goods and services to paying to the vendor. ये पूरा business cycle है from purchasing goods and services to paying to the vendor, पैसा देने तक. ठीक है, इसके अंदर हमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हमारा पीआर. हमें परचेज रिक्विजिशन हम क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम अपनी नीड को रेस करते हैं एंड कि हमें ये सामान की रिक्वायरमेंट है. देन देन पीओ हम क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम ऑर्डर सेंड करते हैं वेंडर को. पीओ इज क्रिएटेड. ओके, पीओ. देन थर्ड इज गुड्स रिसीव्ड. गुड्स एंड सर्विसेज फिर हमें रिसीव होती हैं फ्रॉम वेंडर. आईआर, इनवॉइस रिसीव्ड, वेंडर सेंड्स बिल और इनवॉइस. इसके बाद वेंडर हमको हमारा बिल और इनवॉइस भेजता है. अगेन नाउ फिफ्थ पॉइंट इज इनवॉइस वेरिफिकेशन. हम इनवॉइस को वेरीफाई करते हैं लाइक और 2 वे मैच, 3 वे मैच as we have studied in the AP. And now we will make the payment to the vendor. So pay. So the process is PR, PO, GR, invoice verification and payment. ठीक है, now let's go to the fourth question.
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन P2P एंड AP? ठीक है, सो डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है P2P के अंदर और AP के अंदर। P2P का मतलब है प्रोक्योर टू पे या फिर परचेज टू पे, और AP का मतलब है अकाउंट्स पेबल। P2P इज एंड टू एंड परचेजिंग टू पेमेंट, इसके अंदर परचेजिंग से लेके पेमेंट होती है, और AP के अंदर ओनली इनवॉइस एंड पेमेंट साइड। ठीक है, इस AP सिर्फ इनवॉइस एंड पेमेंट साइड देखता है। थर्ड, इट स्टार्ट्स परचेजिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम PR, ये PR से इसका स्टेप स्टार्ट होता है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखा है इसके स्टेप्स के अंदर। और AP स्टार्ट होता है इनवॉइस रिसीप्ट से। ठीक है, नाउ फोर्थ, it includes procurement. Again, as the name says, purchase to pay, so it includes procurement. इसकी starting की purchase होती है, so it includes procurement. But AP does not start from purchase. ठीक है, ये payment का काम होता है, so it does not include procurement. Fifth is, it includes payment process. ठीक है, P2P, purchase to pay, so इसके अंदर पेमेंट भी आता है। सो एंड AP तो है ही पेमेंट के लिए, सो इट इंक्लूड्स पेमेंट प्रोसेस। सो ओवरऑल AP इज अ पार्ट ऑफ P2P साइकिल। ठीक है, दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन P2P एंड AP, दैट AP is a part of P2P cycle. Okay, now let us see what is two-way match in AP. Two-way match क्या होता है? Two-way match is the process where the vendor invoice is matched with the PO. ये एक ऐसा मैच होता है, टू वे मैच होता है, जहाँ पे हमें वेंडर का जो इनवॉइस है उसको हमें PO से मैच करना है। ऐसे पी चेक्स प्राइस एंड क्वांटिटी बिटवीन PO एंड इनवॉइस बिफोर पेमेंट। इसके अंदर क्या होता है, हमारा PO होता है, उसके अंदर हमें प्राइस और क्वांटिटी वेरीफाई करनी होती है, कंपेयर करनी होती है विद द इनवॉइस प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, अगर इनवॉइस अगर प्राइस हमारा मिसमैच है या फिर क्वांटिटी मिसमैच है, इसका मतलब है हमारा टू वे मैच फेल हो गया है। ओके, सो इट विल नॉट बी टू वे मैच। व्हेन इट विल बी टू वे मैच, जब हमारा प्राइस भी मैच हो रहा होगा और क्वांटिटी भी मैच हो रहा होगा। ओके, नाउ now sixth is explain three-way match. Explain three-way matching with the real example. Yes, ये बहुत important question है. Mark it a very very important question because it is asked by interviewers many times and in most of the interviews. So a three-way match is a process where we match three documents. ठीक है, as the name says three-way match है, तो इसके अंदर हमें PO मैच करना है, गुड्स रिसीव्ड मैच करनी है एंड इनवॉइस को मैच करना है। कौन सी तीन चीजें हैं? PO, गुड्स रिसीव्ड एंड इनवॉइस। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ थ्री वे मैच इज टू इंश्योर दैट व्हाट वाज ऑर्डर, क्या हमने ऑर्डर किया है, क्या हमें रिसीव हुआ है और क्या बिल हुआ है, एंड बिल्ड आर ऑल कंसिस्टेंट। सो the purpose of three-way match is to ensure that what was ordered, what is received, and build are all consistent. ठीक है, for example, now let's see an example. For example, if a PO is created for 200 units, the GRN should confirm that 200 units are received. ठीक है, PO हमने क्रिएट किया है 200 यूनिट्स के लिए, और जियो और हमारी जो GRN है उसको भी, उस पे भी मेंशन होना चाहिए कि हमारी जो क्वांटिटी है वो 200 रिसीव हो चुकी है, वो उतने की बनी होनी चाहिए GRN। एंड इनवॉइस शुड ऑल्सो बी फॉर 200 यूनिट्स, और इनवॉइस पर भी 200 यूनिट्स होना चाहिए एट द सेम प्राइस। प्राइस हम ले लेते हैं 50, तो 50 के ही प्राइस पे हमारी GRN बनी होनी चाहिए और 50 के ही प्राइस पे हमारा इनवॉइस होना चाहिए। इफ देयर इज मिसमैच इन क्वांटिटी, प्राइस और इफ GRN इज मिसिंग, ठीक है, अगर कोई भी हमारा मिसमैच हुआ क्वांटिटी या प्राइस के अंदर, या फिर GRN ही नहीं बनी है, सो द सिस्टम विल ब्लॉक द इनवॉइस फॉर पेमेंट। सो जो सिस्टम है वो इनवॉइस को ब्लॉक कर देगा एंड विल नॉट डू द पेमेंट। ठीक है, in case GR is not created, we would coordinate with the warehouse or procurement team. अगर अगर हमारी GR नहीं created है, so हम warehouse team से या फिर, परचेजिंग या फिर procurement team से कंफर्म करेंगे कि 200 यूनिट्स हमारी GRN में है, 200 यूनिट्स हमारी इनवॉइस में है, 200 यूनिट्स हमारी GRN में है। ठीक है, 1 second, 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 1
about the good receipt before processing the invoice. एपी का काम ये नहीं होता है कि वो जीआरएन बनाए, वो काम होता है वेयर हाउस का या फिर प्रोक्योरमेंट टीम का। एपी का काम सिर्फ है कि वो इनवॉइस प्रोसेस करेंगे, ठीक है, करेक्टली। So, in case GRN is not created, we would coordinate with the warehouse or the procurement team to confirm receipt of goods before processing the invoice. I hope सबको ये समझ आ रहा होगा। अगर कोई doubt हो, so do ask me in the comment section. Okay, seventh one. If the invoice amount is higher than the PO amount, what will we do? अगर इनवॉइस का अमाउंट हायर हुआ पीओ के अमाउंट से, क्या करेंगे हम उस सिचुएशन में? लेट अस सी। इफ द इनवॉइस अमाउंट इज हायर देन द पीओ अमाउंट, वी विल फर्स्ट आइडेंटिफाई द रीजन फॉर मिसमैच। ठीक है, अगर इनवॉइस का अमाउंट हायर हुआ हमारे पीओ के अमाउंट से, हमारा फर्स्ट हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे? द रीजन फॉर द मिसमैच, कि क्या रीजन है इस मिसमैच के पीछे। we will compare the invoice with the PO and GRN. हम compare करेंगे invoice को PO से और GRN से to check whether the difference is due to quantity, price or additional charges like tax or freight. Okay, हम अच्छे से उसको investigate करेंगे हमारे invoice को with PO and GRN, और difference चेक करेंगे कि कोई क्वांटिटी, प्राइस या एडिशनल चार्जेस लाइक टैक्स और फ्रेट का डिफरेंस तो नहीं है। if the difference is within the acceptable if the difference is within the acceptable tolerance limit, we can proceed with processing. अगर हमारी टॉलरेंस लिमिट के अंदर अंदर ही है ये डिफरेंस, ठीक है, हम इस इनवॉइस को प्रोसेस कर देंगे। बट अगर नहीं है, इफ नॉट, वी विल पुट द इनवॉइस ऑन होल्ड एंड कोऑर्डिनेट विद द प्रोक्योरमेंट टीम और रिक्वेस्ट द वेंडर टू रिवाइज द इनवॉइस और अपडेट द पीओ। बट अगर नहीं है, ठीक है, हम क्या करेंगे? वी विल पुट द इनवॉइस ऑन होल्ड, हम इन इनवॉइस को होल्ड पर रख देंगे एंड कोऑर्डिनेट करेंगे प्रोक्योरमेंट टीम से, परचेजिंग टीम से, एंड रिक्वेस्ट करेंगे वेंडर को कि हमें फिर से इनवॉइस की कॉपी अपडेट करके दो। इनवॉइस विल ओनली बी प्रोसेस्ड, हम इनवॉइस तभी प्रोसेस करेंगे वंस जो भी हमारे डिफरेंसेस हैं वो रिजॉल्व हो जाए एंड वी हैव द प्रॉपर अप्रूवल्स। ठीक है, हमारे पास प्रॉपर अप्रूवल्स हों। द इनवॉइस विल ओनली बी प्रोसेस्ड वंस द डिस्पेरेंसी इज resolved and proper approvals are in place. Okay, I hope you are understanding it. If you have any doubts, do ask me in the comment section. AP role, again, AP ka role is not to reject directly, because the role of AP is to investigate, coordinate, resolve and then process. AP हर एकदम से अगर कुछ भी मिसमैच हो इनवॉइस के अंदर या पीओ के अंदर, तो एपी का काम ये नहीं होता है कि एकदम रिजेक्ट कर दे इनवॉइस को। एपी का काम होता है वो इन्वेस्टिगेट करे, कोऑर्डिनेट करे, लाइक वी डिड कोऑर्डिनेशन विद द प्रोक्योरमेंट टीम एंड द वेंडर, एंड उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे एंड देन प्रोसेस करे। ठीक है, ओके, 8th क्वेश्चन। vendor says I have not received the payment, what will you do? Okay, अगर vendor कह रहा है मुझे पेमेंट ही नहीं मिली है, तो आप क्या करोगे? So vendor says that they have not received payment, we will first check the payment status in the system to confirm whether the payment has been processed. Okay, अगर वेंडर कहता है कि मुझे पेमेंट ही नहीं मिली है, हम एसएपी के अंदर जाके चेक करेंगे कि पेमेंट स्टेटस क्या है, टू कंफर्म वेदर द पेमेंट हैज बीन प्रोसेस्ड और नॉट। ओके, हम फर्स्ट कंफर्म करेंगे कि पेमेंट प्रोसेस हुआ भी है या नहीं। ओके, देन वी विल वेरीफाई डिटेल्स लाइक पेमेंट डेट, अमाउंट, बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, और फिर हम वेरीफाई करेंगे पेमेंट किस दिन हुई है, अमाउंट क्या है उस पेमेंट का, बैंक अकाउंट सही बैंक अकाउंट में गई तो है या नहीं। ठीक है, इफ द पेमेंट इज completed, okay, if the payment is completed, we will share the remittance advice with the vendor and ask them to recheck with their bank. Okay, अगर हमारी पेमेंट कंप्लीट हो गई है, we will share the remittance advice हम शेयर करेंगे वेंडर के साथ, और उसको बोलेंगे बैंक के साथ आप एक बार फिर से रीचेक करो एंड आस्क देम इफ they have received their payment, but it is not showing us in the bank account.
Okay, and if the payment is not processed, अगर पेमेंट प्रोसेस ही नहीं हुई है, so we will identify the reason, हम रीजन को आइडेंटिफाई करेंगे, such as इनवॉइस ब्लॉक, को इनवॉइस ब्लॉक तो नहीं लगा हुआ है, अप्रूवल पेंडिंग, कोई अप्रूवल तो नहीं अभी रिक्वायर्ड है, और पेमेंट रन इश्यूज, कि अभी तक कोई इशू तो नहीं है पेमेंट के बैक एंड के अंदर, एंड रिजॉल्व इट अकॉर्डिंगली, और उसी तरह हम इसको रिजॉल्व करेंगे. If required, we will also coordinate with the treasury or bank team to track the payment. If required, so हम coordinate करेंगे treasury या फिर bank team से भी to track the payment. ठीक है? I hope you have understood. Yes? No? I hope you have understood. Do ask me in the comment section if you have any doubts. So let's come to the ninth question. When an invoice is recorded in AP, what is the journal entry? And this is one of the most important questions as well. ठीक है, so when invoice is received, जब भी एपी के अंदर इनवॉइस हम रिसीव करते हैं तो हमारी जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट क्रेडिट. अब ये क्यों होती है? क्योंकि हमने कोई सामान खरीदा है, लाइक वी आर द बायर, सो वी हमने कोई सामान खरीदा है तो वो हमारा एसेट होता है. ठीक है, तो एसेट हमारा एक्सपेंस है, तो वो एसेट या फिर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और वेंडर के लिए एक लाइबिलिटी बन जाता है कि उसने हमको सामान दे दिया है. ठीक है, सो वेंडर का अकाउंट क्रेडिट. So you can see in the bracket expense account is debited because expense increases, asset increase हुए हमारे, and vendor is credited because it is created as a liability for company. Liability बन जाता है company के लिए, that is vendor liability increases. जो vendor की जो liability है वो increase हो गई है. ठीक है. Okay, last question is when payment is made to vendor, what is the entry? जब भी vendor को payment करते हैं तो उसकी entry क्या है? So when buyer pays to vendor, so vendor account debit to bank account. Vendor is debited because जो liability थी वो clear हो गई है, और bank is credited, जो bank account है वो credit है, यानी कि cash is going out. So vendor account debit to bank account. I hope you have understood all the 10 questions and hope you are ready for the interview. All the best, guys. If you have any doubts, do ask me in the comment section. I really wish you get the job, and you will get the job, I know. All the best, and don't forget to thank me in the comment section if you have got the job from these questions. And if any of the questions has come in your interview, do write in the comment section. Okay, okay, guys, thank you so much. Have a nice day. Do subscribe to Tune Up with Megha Jain for more interview questions and for more updates on accounts. Bye bye. See you soon.